Jai Shri You have Krishna. to reply in the same way. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. So welcome to the very special session. You all know the title, right? What is the title of this Tear the session? Tear the fear. Okay, so we will discuss what is the meaning of the title, and we have our special guest Dr. Ashu Goyal ji, as he told his introduction that he is the international working president of Gita Parivar and also the program director of Learn Gita, and he is very popular among the kids especially. He's taking so many sessions for the kids, and all the kids are very much fan about his sessions. So let's start today's session with the small activity. So I will just speak some shapes and you have to draw. Everyone has a pen, right? Pen and paper. Yeah, but mine's not working. It's not working. You can exchange pen. No, I think it's working. Okay, so first you have to draw a square. Everyone. And then circle. Okay, your pen is also not working. Keep the box here. Triangle, If anyone pen is so square, triangle, circle. Okay. यहाँ पे आगे Parallelogram. This is the इसका भी काम You want to take another? and then one rectangle. Okay, I think you have done this. Can anyone show this here? Okay, Manas, can you come here? Show everyone. Everyone can see this, right? Okay. Anyone else? Something Yeah, you can also show. special if you have found something. Everybody has drawn like this only, or somebody have drawn in a different here also? Okay. Little difference. Okay. 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 You can all lift your pages and search to here. Okay. Okay. So we all have drawn the different shapes in a mostly in the same manner. कोई किसी ने सीधा लिख दिया, किसी ने दो लाइन में कर दिया, किसी ने उसको वर्टिकल कर दिया, किसी ने हॉरिजॉन्टल कर दिया. But we thought that if it has been asked, it may have a different sense, or we didn't thought that these shapes can make one another shape. Because when you keep these shapes differently and you are placing it differently, then it is not making any sense, is it? Is it making any sense? But can you think again that you have to use these same properties and you have to make a figure that makes sense? You can try. With the same figure, can you try? House. Nice. Very nice. Give me. Any more? Made something? Ice cream. Okay. But it doesn't have all the shapes. No, all of them. Yes, you have to use all of them. Nice. You can show that. It's an open box. Doesn't make much sense. Pizza. Pizza. Okay. Give it. It has all the shapes. Give it a check.
shape more than once. Yes. No, 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 no. Copycat. It's okay. It's okay. We don't. Head. Good. Nice. Anyone else? Nice. Nice. Any more submission? What do you mean? Face. Okay, nice. Any more? Yeah. What is this? It's a crystal. It's a crystal, okay. Nice. Other than? It's on a building. Building. It's on a planet, I think. It's fine, it's fine. It's all about creativity, what we can think. Okay, nice. Bus. Bus. Nice. Anyone else? All done? Okay. So, when we didn't give a thought, everybody understand Hindi also or everybody understand English only? Yeah, we understand. बोथ हिंदी और फाइन. तो जब हम नहीं सोच रहे थे और हमने उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, हमने सब बातों को अलग अलग रख दिया और फिर आपको कहा गया कि आप इन सबको कंबाइन करके एक शेप दे सकते हैं. तो यहाँ पर बैठे हुए 2, 4, 6 लोगों ने उसको हाउस का शेप दिया अलग अलग. एक प्लैनेट के साथ हाउस है, एक रिफ्लेक्शन के साथ हाउस है, एक वही स्टूडियो टाइप हाउस है, एक घर में 2 खिड़की भी है, एक में चिमनी है, इसमें भी चिमनी है. वेरी नाइस. और फिर किसी ने पर्सन बनाया, किसी ने फेस बनाया. बट आई एम सरप्राइज 2 फेस बने, दोनों की स्माइली. Why they are not smiling? There are 2 faces and both are not smiling. Shape नहीं था. Shape. Oh, that's true. We didn't give the shape. Okay. And we have another house plus bus here. A nice bus with a chimney. And there is a ice cream. The chocolate chip upside. It's a photo. Huh? It's a photo frame. Photo frame. It's a photo frame. Oh, sorry. Ice cream on a photo frame. Okay. Ice cream. Great. And this is pizza on the table. Is it? Box. Pizza box. Okay. Pizza box. And it is very unique crystal. No, it's important. Oh, sorry. Yeah, that makes sense. लाइफ ऐसा ही है. जब लाइफ के अलग अलग सिनारियोस को हम कंबाइन करना सीखते हैं तो उसमें से क्रिस्टल भी बनता है, घर भी बनता है, बस भी बनता है, खाने को पिज़्ज़ा भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलती है, लगाने को फोटो फ्रेम भी मिलता है. इट हैपन्स. बट व्हाट इफ वी डोंट लर्न? लाइक एट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई आस्क्ड यू, हमारे मन में किसी के भी नहीं आया that we should combine it until we were asked. तो क्यों आ सकता था? नहीं आ सकता था, ऐसी बात नहीं. लेकिन हम जितने भी यहाँ बैठे थे, हम में से किसी के मन में नहीं आया कि हम लोग इसको कंबाइन करके हम कोई नया शेप भी बना सकते हैं. क्यों? हमने सोचा कि उन्होंने बताया ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ. And we started doing like this. When we play like that, then life becomes थोड़ा लंबी हो जाती है, थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है, थोड़ी बोरिंग. और
when we are drawing like this, so it doesn't make any sense. So when you're in a teenage and when you will grow up more, then sometimes you will see that life is also like that. We have so many things in our life, but it is all not making sense. It happens or not? It still happens. अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, घर भी ठीक ठाक है, दोस्त भी है, टीवी भी है, प्ले स्टेशन भी है. We have everything we want, but also then life is not making much sense. Why? It happened because we didn't learn that it can make any shape. We can shape our life. We didn't thought of shape. हमने अलग अलग वर्टिकल्स को के ऊपर लाइफ पे काम किया, क्योंकि हमको सिखाया गया हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, जिन्होंने भी मिला, उन्होंने लाइफ के अलग अलग वर्टिकल्स के बारे में हमको कुछ कुछ बतलाया. लेकिन ओवरऑल इनको मिलाकर एक कोई शेप बनाना, ये हमको कोई नहीं बता सकता. Nobody can. It can make by us only. Like I ask you to make a shape. 6 people make the house because one told house. तो 5 had this idea in the mind कि हम भी house बना लेते. Nothing wrong. It happens. We get some inspired by someone else. It happens. All the time happens. लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि हाउस ही क्यों बनाना है, सब लोग हाउस बना रहे हैं. We should think different. वो भी सोच सकते थे. फिर उसके बाद किसी ने सोचा कि नहीं, मैं तो कुछ और बनाऊंगा. फिर किसी ने क्रिस्टल बना लिया, किसी ने पिज़्ज़ा बना लिया, किसी ने आइसक्रीम बना लिया, किसी ने फेस बनाया, किसी ने पर्सन बनाया. इट हैपन. तो ये सब करते समय वी एंजॉयड. When first you were making the shapes, were you enjoying? No. But when you tried to club it and when you tried to make some shape, you started enjoying it or not? Started enjoying it. Life is all about it. You have to learn how to build the shape to the life. You have to add shapes in the life. जितने जितने हम shapes add करेंगे लाइफ में, उतना ये लाइफ अलग अलग लेवल पर बढ़ता जाता है. एक स्टोरी है, अकबर का नाम सुना है मेरे? सुना है. तो अकबर का दरबार था और अकबर बहुत किंग तो था ही. इवन ही वॉज अ मुगल एम्परर, बट ही हैज सम गुड क्वालिटीज इन हिम. और उसकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, ही वॉज द फैन ऑफ द क्रिएटिविटी. कोई अच्छा क्रिएटिव हो, ही यूज्ड टू कलेक्ट इट, और वो उन सबको कलेक्ट करके उनको इनाम देता था. और सबको तो बहुत सारे पूरे भारत से भी बाहर से भी लोग आया करते थे कि मैंने कुछ एक्सक्लूसिव लाया है. एंड इफ किंग अकबर लाइक्स दैट, ही यूज्ड टू गिव देम रिवार्ड्स. तो एक बार एक मूर्तिकार आया. कौन होता है मूर्तिकार? स्कल्पचरिस्ट, जो मूर्ति बनाता है, who add shapes to the clay or the marble or stone, whatever. तो मूर्तिकार आया. तो मूर्तिकार ने कहा कि बताओ महाराज को कि मूर्तिकार आया है और मैं महाराज को कुछ दिखाना चाहता हूँ. तो दरबार ने कहा, अरे जाओ जाओ, बहुत आते मूर्तिकार, इतना टाइम नहीं महाराज के पास कि तुमसे मिलेंगे. इतने बड़े महाराज तुम आ गए. नहीं, मैं बहुत खास मूर्तियाँ लाया हूँ, ऐसी मूर्ति जो महाराज ने कभी देखी नहीं होगी. बोले छोटे से मूर्तिकार इतनी बड़ी बातें करते. अकबर ने नहीं देखी, इतनी बड़ी मूर्ति लाया तुम, इतनी खास बात तुम्हारे पास, ऐसा क्या हो सकता है? बोले बस तुम खबर कर दो, क्योंकि राजा को बाद में पता लगा कि तुमने मुझे नहीं घुसने दिया तो समझ लेना, तो नौकरी भी जाएगी, गर्दन भी काटी जा सकती है. अब सैनिक थोड़ा डरा, क्योंकि मूर्तिकार का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था. तो कॉन्फिडेंस, when you have the confidence in the life, it shatters the people around you. आपके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आपकी बात को लोगों को मानना पड़ता है, और लोग आपके कॉन्फिडेंस से दब जाते हैं कि हो सकता है इसकी बात ज़्यादा सही. तो शुरू में तो उस सैनिक ने एंट्री नहीं दिया कि वो बहुत देखिए मूर्ति का, महाराज के पास 10 महीने. लेकिन जब इसने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो बाद में अकबर को पता लगा कि तुमने नहीं दिखाने दिया, समझ लो यू विल बी पनिश्ड. नाउ दिस फेलो वाज फ्राइटेंड, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, मेरी कहीं नौकरी नहीं चली है. उसने कहा लाए क्या, ये तो बता दो.
उसने कहा कुछ ऐसा खास लाया हूं जो अकबर ने कभी नहीं देखा, तुमको नहीं दिखा सकता। यू डोंट हैव दैट एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ओह मच क्लासिफाइड। तो मूर्तिकार ने कहा कि भाई अब तो टाइम हो रहा है, बहुत शाम हो गई है, दरबार उठने वाला है, कल आ जाना। बोले नहीं नहीं, इट इज टू इम्पोर्टेंट, आई वॉन्ट टू शो इट टुडे। ओके। मूर्तिकार की बात सुनकर दरबारी अकबर के पास गया, अकबर से कहा कि महाराज कोई आया है जो कहता है कि बहुत खास लाया है और आज ही आपको देखना बहुत जरूरी है। अकबर ने कहा दरबार का टाइम हो गया, बोलना कल आएगा। उसने कहा बट ही इंसिस्ट्स कि आप आज ही देखिए। अकबर ने कहा देखो इतना इंसिस्ट कर रहा है तो ले आओ, लेकिन उसको वार्न कर देना, इफ ही वेस्टेड माई टाइम आई विल पनिश हिम। रिवॉर्ड तो भूल जाए, आई विल गिव हिम पनिशमेंट। इफ ही स्टिल थिंक्स दैट इट इज वर्थ इट टू टेक माई टाइम, ओके लेट हिम कम। तो एक सैनिक बाहर गया, उसने कहा सोचो महाराज ने कहा है कि यदि तुम उनको प्रसन्न ना कर सके तो तुमको दंड देंगे, यू विल बी पनिश्ड। तो स्टिल यू वांट टू गो? यस आई वांट टू गो। और ये मूर्तिकार अंदर आया, महाराज को प्रणाम किया। महाराज आज आपको दिखाने के लिए कुछ अद्भुत लाया। ऐसा क्या अद्भुत लाया हो मूर्तिकार? मेरे पास हजारों लाखों मूर्तियां हैं, ऐसा क्या दिखा सकते हो जो मैंने कभी ना देखा? महाराज लाया हूं कुछ ऐसा। अच्छा ऐसा लाया हूं, दिखा। और मूर्तिकार के पास एक बैग था, he was carrying a bag on his shoulder. He put it down. उसने उस बैग को खोला और बैग से एक मूर्ति निकाला। It was a human sculpture. सुंदर इंसान का मूर्ति है, अराउंड 1 feet 12 inches। और वो 12 इंच की जो मूर्ति थी तो इंसान की छोटी सी, शेप पे छोटे होने पर भी इट वॉज टू रियल कि लगता था कि अभी आंख झपक जाएगी। उसके लिप्स इतने रियल थे कि लगता था कि अभी मुस्कुरा देगा। उसके बाल इतने रियल थे, लगता था अभी हवा चलेगी तो हिल जाएंगे। इतनी सुंदर मूर्ति तो वाकई बने हुई नहीं। ने कहा वाकई लाजवाब है तुम्हारा काम। आई रियली डिडंट सी सच अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर एवर। बहुत सुंदर मूर्ति लाया होगा मूर्तिकार, आई विल गिव यू रिवॉर्ड्स। बोलो क्या चाहिए तुम? ये मूर्ति तो मुझे तुम देके जाओ मेरे कलेक्शन के लिए। आई वॉन्ट दिस, इट इज सो ब्यूटीफुल। मूर्तिकार ने कहा महाराज ठहरिए, आई हैव मोर। ओ यू हैव मोर? यू हैव मोर लाइक दिस? नॉट लाइक दिस, I exactly like this. Exactly like this. ये वो जमाना नहीं था जब डाई से एक जैसे बहुत सारे पीसेस बनाए जा सकते। every sculpture was handcrafted. तो हैंडक्राफ्टेड एक जैसी कई मूर्तियां होना मुश्किल बात थी। मूर्तिकार ने दूसरी मूर्ति निकाली। It was the same beautiful as the first one. Not beautiful, it was a clone. एकदम सेम, हूबहू। हम लोग वो गेम खेलते हैं ना कि 10 अंतर ढूंढो, 2 फिगर्स है उस फिगर्स में। तो अकबर वाज स्टार्टिंग दैट गेम कि कोई तो अंतर मिले, एक भी जरा भी अंतर नहीं, एकदम सेम ऊपर से नीचे तक। इवन पैर के जो नाखून बने वो नाखून भी एकदम एक जैसे, उसमें भी जरा भी अंतर नहीं। नाउ अकबर वाज वेरी सरप्राइज्ड। यू हैव मोर? यस। और उसने तीसरी मूर्ति निकाली, तीसरी भी एकदम क्लोन, एक जैसी 3 मूर्तिकार, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। इतना एक जैसा काम तो कोई भी करने वाला आज तक मैंने देखा नहीं। कोई एक जैसी 3 मूर्ति कैसे बना सकता है जिसमें जरा भी अंतर दिखता ना हो? तो मेरा हाथ है कि मशीन, क्या कारीगरी करते हो? भगवान ने तुमको अद्भुत बनाया है। मुझे तुम्हारी तीनों मूर्तियां बहुत पसंद है। तुम जो चाहोगे उसका मूल्य मैं दूंगा। तुम बताओ तुम्हें इसका क्या मूल्य चाहिए? व्हाट प्राइस यू वांट? I want all the 3. मूर्तिकार स्माइल्ड। उसने कहा महाराज मूल्य तो मैं आपसे लूंगा, लेकिन थोड़ा एक ट्विस्ट है। What is the twist? उसने कहा इसमें से एक मूर्ति 1 रुपए की है, एक मूर्ति 500 रुपए की और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की। क्या बकते हो? एकदम एक जैसी मूर्ति है,
फिर इसमें फर्क कैसे हो सकता है? वो भी 1 रुपए, दूसरी 500 रुपए और तीसरी 1 लाख। इतना बड़ा डिफरेंस। मूर्तिकार ये तो एक जैसी है, इसमें से कौन सी 1 रुपए की, कौन सी 500 की, कौन सी 1 लाख की? उसने कहा मैं अकबर के दरबार में खड़ा, अगर ये बात भी मुझे बतलानी पड़े तो आपकी क्या इज्जत? महाराज ये तो आप बताइए कि इसमें कौन सी 1 की, कौन सी 500 की, कौन सी 1 लाख की? अकबर फंसा। उसने कहा तो फंसा रहा, मेरे को तो जरा भी अंदर दिखता नहीं है, और ये बोलता है 1 रुपए की, 500 की, 1 लाख की। ओ उसे कहा इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे अंदर बड़ी परीक्षा करके बतलाएंगे। और अकबर के पास नवरत्न का दरबार था, सुना है ना? तानसेन भी है, बीरबल भी है। लेकिन बाई चांस उस दिन बीरबल छुट्टी पर थे, ऑन अ सिक लीव। आपको स्कूल नहीं जाना तो लिखते हैं ना, टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, काइंडली ग्रांट मी लीव। ऐसे ही बीरबल ने एप्लीकेशन सुबह सुबह भेज दिया था, आई एम नॉट वेल, प्लीज ग्रांट मी लीव। तो बीरबल उस दिन आए। अब बाकी दरबारी को तीनों मूर्ति देखते, अलटते पलटते, किसी ने कांटा मंगाया, वजन किया तो उसका वेट भी एक जैसा, उसको बजा के देखा, मटेरियल भी एक जैसा, आवाज भी अंदर से एक जैसी आती है। एवरीबडी ट्राइड टू एग्जामिन बट नोबडी कुड फाइंड अ लिटिल डिफरेंस। नाउ इट वाज गोइंग एम्बैरेसिंग। एक किंग के दरबार में आके उसको कोई चैलेंज करे, वो भी भारत का किंग बना हुआ है वो, और वहां पर उसके पास कोई आंसर नहीं हो, इट वाज वेरी शेमफुल, बट ही वाज अ किंग, अ ब्रिलियंट वन। तो उसने कहा कि मूर्तिकार तुमने बहुत समय ले लिया हमारा, अभी दरबार का समय भी पूरा हो गया, ऐसा करना कल सवेरे आना, तब तक हमारे मंत्री परीक्षा कर लेंगे, और परीक्षा करके तुम्हें सुबह बता देंगे कि इसमें क्या अंतर है। अभी तुम जाओ, बहुत टाइम ले लिया मेरा। और मूर्तिकार को पता तो लग गया, इसको समझ में आ नहीं रहा, पीछा छुड़ाना है, डील करे क्या, राजा की आज्ञा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, सुबह आना जाओ। और जैसे ही मूर्तिकार निकला, अकबर ने कहा बीरबल कहाँ है? सारे लोग दिखते हैं, वो दिखता नहीं है। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वही है, बीरबल, क्योंकि सबसे बुद्धिमान अकबर के सारे नवरत्नों में बीरबल है। आपने अकबर बीरबल के बहुत सारे किस्से सुने। तो बीरबल को कहा कि कहाँ है? उसने कहा महाराज वो तो छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं, जैसा हो जाओ, बुला के लाओ, उठा के ले आओ। और वे सैनिक भागे। बीरबल महामंत्री है दिल्ली के महामंत्री, मतलब सिक्योर जोन क्लासिफाइड, लेकिन सैनिकों की राजा आज्ञा है, राजा आज्ञा है तो तुरंत भाग के गए और दरवाजा खटखटाया, खड़बड़ 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 खड़बड़। बीरबल ने कहा इतनी हिम्मत, मेरा दरवाजा, महामंत्री का दरवाजा कोई ऐसे पीट रहा है? गुस्से में बीरबल ने दरवाजा खोला, कौन है? इतनी जरूरत, मेरा दरवाजा पीटते हो? सैनिकों ने कहा क्षमा करें मंत्री, लेकिन तुरंत महाराज ने याद किया है, लेकिन आज तो मैं छुट्टी उट्टी कुछ नहीं, महाराज ने कहा तुरंत चलिए। अरे बाप रे, लगता है राज्य पे हमला हुआ, कोई तो बड़ी सेना आके खड़ी हो गई, वरना ऐसा क्या अर्जेंसी थी कि तुरंत चलिए। बीरबल ने कहा भैया कपड़े तो पहन लो, लेट मी हैव अ गाउन। गाउन पहनते थे ना मंत्री लोग, लेट मी हैव अ गाउन, अभी थोड़ा तो जल्दी से जल्दी पहनिए। बीरबल अंदर गए, अपना गाउन पहना, बाल बाल ठीक किए, पगड़ी लगाई, तिलक लगाया, चले तो देखा अकबर अंदर घूम रहे हैं, ऐसा ऐसा बड़ी टेंशन में। दूर से बीरबल देख रहे महाराज घूम रहे हैं, तीनों मूर्तियां एक स्टूल पे रखी है, और अकबर इज वॉकिंग विद द फोर्स, बड़ी टेंशन में। दूर से मूर्तियां तो दिखी नहीं, लेकिन दूर से देखकर ये लगा कि कुछ बड़ी बात हो, मामला बिगड़ा हुआ है, शायद हमला हुआ है। बीरबल ने कहा, पहुंचे, प्रणाम महाराज, कैसे याद किया? अरे बीरबल, बड़ी मुश्किल आ पड़ी, कहाँ थे तुम? महाराज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे एक बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, क्या हुआ महाराज? अरे एक मूर्तिकार आया है। तो मूर्तिकार आने में क्या बड़ी बात होगी महाराज? अरे वो 3 मूर्तियां लाया है। वो तीनों मूर्तियों को इशारा किया अकबर ने। तो महाराज इसमें क्या बड़ी बात है? अरे बीरबल, ये एकदम एक जैसी मूर्तियां हैं, लेकिन वो बोलता है इसमें से एक कितने रुपए की है? 1 रुपए की, दूसरी और तीसरी 1 लाख। और बीरबल हम सब ने देख लिया, हमें तो अंतर ही नहीं पता लग रहा। और वो मूर्तिकार कहता है कि अकबर के दरबार में वो थोड़ी बतलाएगा, दरबारी बतलाए, वो हमारी परीक्षा ले रहा है। उसने हम सब की नाक दांव पे लगा दी, अकबर की नाक दांव पे लग गई है। बीरबल
कैसे भी हो तुम रात भर में पता लगाओ इन मूर्तियों में क्या अंतर है, अगर नहीं पता लगा पाए तो कल से तुम्हारी गर्दन करूंगा। मेरी क्यों सरकार, मैं तो छुट्टी में था, मेरी क्यों अलग करनी है। लेकिन अब राजा के सामने क्या बोलता, अजीब उठाया मूर्ति को, बैग में रखा, बैग में रख के चला गया। सुबह तक तो पूरी दिल्ली में खबर फैल गई और आज 1000 लोग इकट्ठे हो गए दरबार के बाहर। कोई मूर्तिकार आया है, अकबर को फंसाया, कोई मूर्तिकार आया है, अकबर को फंसाया। अब ये खबर दिल्ली में फैली तो लोगों को बड़ा मजा आया और लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए क्या होने वाला है, तमाशा होगा आज तो, अकबर की नाक कटेगी, हम सब हंसेंगे। और सब इकट्ठे हो गए, मजमा लग गया, सारे दरबारी आके बैठे, अकबर आकर बैठे और मूर्तिकार भी आया। अकबर ने देखा इतने सारे लोग काहे को आए, तो बुला के किसी पूछा इनको किसने बुलाया, बोले महाराज किसी ने नहीं बुलाया, पता नहीं बात कैसे फैल गई और सब इकट्ठे हो गए। अकबर को चिंता हुई, पहले तो अपने दरबार में नाक कटती, अब तो सब पूरी दिल्ली के सामने नाक कटेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अकबर के माथे में पसीने, अब क्या होगा। इतने में दूर से बीरबल अपने कंधे पे बैग लेके चलते हुए आए। अब अकबर को बड़ी उत्कंठा हो रही है, जवाब मिला कि नहीं, तो दूर से पूछते हैं काम हुआ, हो गया, व्हाट अ रिलैक्स, काम हो गया। बीरबल ने पता लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। बीरबल आए, अकबर ने कहा बीरबल बताओ इस मूर्तिकार को इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है, कल से इसने हमारा समय लिया हुआ है। बोलते बताओ इस मूर्तिकार को, जानना खुद को है, लेकिन कैसे कहे कि मुझे बतला, मूर्तिकार को बतला। तो बीरबल ने कहा ओके, एक बड़ी टेबल मंगाई ऊंची हाइट की, उस पर तीनों मूर्तियों को निकाल के रखा। और फिर बीरबल ने जेब से एक लोहे का तार निकाला और पहली मूर्ति के कान में डाला, वो तार दूसरे कान से निकल गया। फिर दूसरा तार निकाला जो उससे लंबा था, वो दूसरी मूर्ति के कान में डाला, वो तार दूसरी मूर्ति के मुंह से निकल गया। फिर तीसरा तार निकाला जो बहुत लंबा था, और ये तार जब उसके कान में डाला तो ये चलता ही गया, पूरा तार इतना लंबा उस मूर्ति के अंदर चला गया और आखिरी में थोड़ा सा बाहर निकला। बीरबल ने कहा महाराज एक मूर्ति इसमें 1 रुपए की, एक 500 की, एक 1 लाख की। अकबर ने कहा वो तो हम सब जानते हैं, कौन सी कितने की है, कौन बतला सकता है कौन सी कितने की है? Anybody know? Anybody guess? उसमें से सबसे बड़ा तार है। हाँ वो 1 लाख की होगी। Why? With the reason, na logic. Because it filled the most string, like the most ये बात amount of है। string got. सबसे सस्ती कौन सी है? स्कल्पचर बनाते इसमें से सबसे छोटा वाला तार है। Yeah. जो सबसे छोटा तार होल्ड करता है वो सबसे सस्ता, जो सबसे बड़ा तार होल्ड करता है सबसे महंगा, ऐसा? Yeah. Doesn't make any तो sense. सबसे जिसमें सबसे बड़ा था वो सबसे सस्ती थी, वो सबसे सस्ती है। अंदर से हॉलो थी, मटेरियल कम यूज हुआ। Okay, but weight was same. The third one, because it took the most effort to make. Okay. Anybody else? पहली मूर्ति ऐसी थी जो यहाँ पर कोई नहीं है, मैं लखनऊ में होते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से। यहाँ पर आए, कोई आशु भी आए थे, घर पे पूछा कौन क्या था, कौन थे, पता नहीं, कोई आए थे कुछ बता रहे थे, मुझे याद नहीं, कुछ बोले तो थे, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसे व्यक्ति की कीमत जीवन में 1 रुपये। जीवन में सुनने को नहीं मिलता, ज्ञान पाने को नहीं मिलता, ऐसा कोई नहीं होता। बट नॉट एवरीबडी इज राइजिंग, नॉट एवरीबडी इज यूजिंग हिज इंटेलेक्ट टू कैप्चर ऑल द नॉलेज which is flowing around him, right? ऐसा कोई है जिसके आगे नॉलेज आती ही नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं who has no content of knowledge, उनको कुछ भी पता नहीं होता, उनको सिंपल बात भी पूछो तो उनको मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, थोड़ा सा काम का कुछ भी करने को नहीं, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। Who are these guys? 1 रुपए वाले, क्योंकि वो हर बात को इधर से सुनते हैं, इधर से। But there is second category of guys who listens, absorbs also. किसी ने बताया हाँ वो एक आशु भैया आए थे, कोई गीता परिवार के प्रेसिडेंट थे, और
फिर वो कुछ कहानी वानी भी बता रहे थे अकबर की बीरबल की मूर्तियों की, ये बतलाया वो बतलाया, एक्टिविटी कराई, खेल कराया, और घर पे जाके सब बतला दिया। गेम ओवर। कीमत बढ़ी लेकिन कितनी बची? 500 रुपए की। अब व्यक्ति कीमती हो गया क्योंकि ये सुनकर समझ तो लेता है क्या बतलाना, इसको पता तो है, कहीं से कुछ सुना तो उसको आगे वो एक्सप्लेन कर सकता है, आगे बतला सकता है। But he is not adding anything to his life, so he remains 500. Now the third one. It is a different guy. Some of you may have this kind of brilliance. जो अच्छी बात मिल गई, काम की बात मिल गई, तो उसको पचा लेते। एक बात नहीं बचाते, दुनिया की बहुत सारी अच्छी बातों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ही कैन डाइजेस्ट द लार्जेस्ट आयरन रॉड, और वो आयरन का वायर उसके पेट में चलता है, और वो किसी दूसरे को नहीं बतलाता। जैसे रामचरितमानस की छुपाई है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि तेना घने। दूसरे को उपदेश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको अपने आचरण में बनाने वाले वो बहुत थोड़े, तेना घने, वो बहुत थोड़े से लोग हैं। लेकिन ये जो थर्ड वन है, he absorbs and he applies whatever good is telling around. जो उसके आसपास अच्छी बात हो रही है उसको ये समझता भी है, उसको जीवन में लाता भी है, और फिर अपने जीवन में आ गया तब जाकर वो किसी को बतलाता भी है। There is another story. एक बार गांधी जी के पास एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेके आई, बड़ी मुश्किल से 3 घंटे में दर्शन का नंबर मिला था, क्योंकि गांधी जी के पास रोज सैकड़ों लोग मिलने आते थे। तो 3 घंटे बाद उसका नंबर आया तो उसने कहा, बापू मेरा बेटा है 10 साल का और आपका बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन गुड़ खाने से, बहुत ज्यादा गुड़ खाने से इसके दांत में कीड़े लग गए। डॉक्टर ने मना किया कि इसको कुछ दिन गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन गुड़ खाना बंद ही नहीं करता है। और डॉक्टर ने कहा अगर ये गुड़ खाना बंद नहीं करेगा तो उसके सारे दांत गिरकर खराब हो जाएंगे और फिर तो इसको कभी चबाने को नहीं मिलेगा, तो आप इसको एक बार कह दो गुड़ नहीं खाना। गांधी जी का और बोले बस आप इसको इतना कह दिए गुड़ मत खाया करो तो ये नहीं खाएगा। गांधी जी का अच्छा ऐसा करना, माँ 21 दिन बाद इस बच्चे को लेकर दोबारा आना। 21 दिन बाद दोबारा आना, क्या गांधी जी को टोना टोटका करेंगे, कोई पूजा करेंगे, कोई मंत्र करेंगे? 21 दिन बाद दोबारा क्यों बुलाया? अब लेकिन गांधी जी से पूछ नहीं सकते, they were so big to ask, तो वो बेचारी अपने बच्चे को लेकर चली गई। 21 दिन बाद दोबारा आई तो बापू मैं 21 दिन पहले आई थी आपको गुड़, अरे मुझे सब याद है, वो बच्चा क्या लेके आओ। वो लेके आए और लेके आए तो बापू ने उसको देखा, वो बच्चा बापू को देखकर खुश हो गया, फिर गांधी जी का बहुत बड़ा फैन था वो, तो हम जिसके फैन है वो मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते। तो गांधी जी ने उसको देखा और देख कर कहा कि ओ वाह नाइस, बहुत अच्छे हो तुम बेटा, ज़्यादा गुड़ नहीं खाना, कुछ दिन के लिए छोड़ देना तो तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे। उसने कहा जी अच्छी बात। तो माँ को कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, आपको इतना ही कहना है इससे? बोले हाँ तुमने यही तो कहा था इससे कह दीजिए कि गुड़ मत खाना, तो मैंने कह दिया। तो बापू ये बात तो आप 21 दिन पहले कह देते, 21 दिन बाद क्यों बुलाया उसको, क्या जरूरत है 21 दिन बाद? मेरे टाइम की तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो आपको 10 बार मिलने आऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आपने अपना दोबारा समय क्यों दिया? पता है गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि मैं रोज भोजन के साथ गुड़ खाता था, अगर मैं इसको कहता तुम गुड़ ना खाओ तो ये कैसे करता? पिछले 21 दिन से मैंने गुड़ नहीं खाया है, अब मेरा अधिकार हो गया कि मैं इस बालक को कह सकता हूँ कि तुम भी गुड़ मत खाना। अब ये गुड़ नहीं खाएगा क्योंकि मैंने इसको कहा है और वो प्रैक्टिस करके खाए। हम जो बात अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं और दूसरे को कहते हैं देन इट गोस। हम जो बात इधर उधर से सुनते हैं और दूसरे को बताते हैं देन इट डजंट वर्क वेल। कहना है ना, इधर उधर से सुनकर बोलना ये सबसे सरल काम है। 500 रुपए की कीमत बन जाती है, लेकिन 1 लाख की कीमत किसकी बनती है? जो उस बात को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके फिर दूसरे को डिलीवर करता है। When you apply something in your life, when you have some principles in your life,
then it goes on another level. एक और एक्सरसाइज करेंगे. सब लोग डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिखो. Everybody has the pen and paper. You know the spelling of the discipline? You know? First year again. Okay, no problem. I can tell. किसी को नहीं पता तो मेरे पास आके चीटिंग कर सकता है. थोड़ा सा दूर दूर लिखना. DISCI थोड़ा थोड़ा दूर. D उसके थोड़ा दूर. I उससे थोड़ा दूर. S ऐसा थोड़ा दूर दूर लिखना. ठीक है. फिर I फिर P L फिर I फिर N फिर E है ना. Manas, I'm seeing what you are seeing. Okay, no problem. Exercise is not discipline spelling, so you can watch. Now, consider A is 1, B is 2, C is 3. So D is 4. So you can write 4 below the D. Then now, what for I? 9. 9. 9 for I, correct. What for S? Calculate. 15. You don't have to guess. 19. You have to count. Yes, it is 19, correct. Now C, 3. P, correct. I, 9. correct. P, 16. 16, correct. L, 12. L is? L is? Again, you don't have to guess. 13. Not 13. 12. 12 is correct. Now I, 9. N, 14, correct. And E, 5. right. Now do the total. Oh, mathematics exam na tough one. English और maths का combined exam है. Who makes the total fastest? $97. Answer. जो जो टोटल नहीं कर पा रहे वो आगे मैथ्स में देना आगे. 4 plus 9, 13. 13 plus 19, 32. 32 plus 3, 35. 35 plus 9, 44. 44 plus 16, 60. 60 plus 12, 72. 72 plus 9, 81. 81 plus 14, 95. 95 is 5, 100. So what is the total? 100. Discipline adds hundreds in your life. जितने लाइफ में तुम डिसिप्लिन लेते आओगे उतने लाइफ में तुम्हारे हंड्रेड्स ऐड होते जाएंगे. Whatever you are doing and you are not following discipline, you are decreasing your hundreds. And whatever you are doing, you are adding discipline to it. It is like adding 100 to it. Discipline is the word which makes 100. हम बहुत सारा काम करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं, पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं, मूवीज भी देखते हैं, मोबाइल में गेमिंग भी करते हैं, फ्रेंड्स भी बनाते हैं, फैमिली के साथ भी कुछ अच्छा बात करते हैं, लेकिन हम सब जगह पर 100 नहीं हो पाते. ऐसा होता है कि नहीं? We try. Everybody wants or not. सब में 100 चाहिए होता है ना हमको. But in spite of we want 100, it doesn't happen. Why? जहाँ डिसिप्लिन लैक करेगा वहाँ पर हम 100 लूज कर देंगे. When you have the discipline,
how to sit, how to speak, how to behave, when to do, when not to do. सब चीज करना है, नहीं करना गलत नहीं होता, कि समय पर करना, कितना करना, ये गलत तो सही होता है. चलना सही बात है कि गलत बात है? सही बात है. अभी उठकर चलने लग जाओ. चलना सही और गलत नहीं है, कि समय चलना, कितना चलना. अब कोई चलता ही जाए 20 किलोमीटर, इट विल नॉट ऐड. कितना चलना वो भी आना पड़ेगा, है ना. खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है. तो खाते ही रहना, कभी भी खाना, बहुत खाना, बहुत कम खाना, ध्यान में है ना. एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस एंड द टाइमिंग, एंड बैलेंस एंड टाइमिंग एड्स डिसिप्लिन. When you do something with the timing, with the current balance, it adds discipline. Discipline is nothing like कि वो कोई आपके ऊपर डंडा लेके खड़ा. It is about the time and the quantity. हम जो कुछ कर रहे हैं उसका टाइमिंग सही है कि नहीं और उसका क्वांटिटी सही है कि नहीं. गीता में भगवान इसको कहा समत्वम योग उच्यते. Balancing is the best art of the life. When you learn to balance the things, it is discipline. मुझे कितने बजे उठना है, कितने घंटे सोना है, it is a discipline. I have to follow that. जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब मैं खेल के बारे में नहीं सोचूंगा. जब मैं खेल रहा हूँ I don't need to think studies. जब मैं जो काम कर रहा हूँ I can focus in that or not. It is a discipline. डिसिप्लिन होता है तब कंसंट्रेशन आता है. विदाउट डिसिप्लिन nobody can have concentration. हम सब कंसंट्रेशन ढूंढते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं ढूंढते. And that's why we don't get the concentration. Concentration की key है discipline. When you have the discipline, you will learn to concentrate also. हमारे फ्रेंड्स, हम कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे हीरोज कौन है, इट ऑल एड्स नंबर्स इन द लाइफ. प्रेजेंटेशन. किसका किसका फेवरेट हीरो हीरोइन कौन कौन है? Anybody can tell me. You don't have any hero? Shashi Tharoor. Okay. Spider-Man. Okay. हाँ, SRK. Okay. What? Spider-Man. Flash. Okay. No, you don't know anything. Okay. It's tough to choose. Tough to choose. Kohli. You can tell two. Sachin. Sachin. Tendulkar. Okay. Rahul Dravid. Okay. मैंने सुन लिया था. हाँ, मैंने सुन लिया था, वहाँ से बताया गया. Okay. One is Dhoni and one is Spider-Man. Okay. Spider-Man is very popular in Dubai, huh? If he knows that, he will be very happy. Hrithik Roshan, okay? You don't have any. Okay? Batman, okay? Kavita? Don't have any? Don't have any? Anybody else have any heroes? Billy G? Same answer. What is the definition of hero? Or heroine? Whatever. Someone you aspire to be. Like. Who inspires you? Yeah, someone. Somebody is role model. And when you say role model, some of us told sportsmen, some of us told actors, some of us told fictions, Spider-Man, like superheroes as they are called. लेकिन some of us told politician. Why Shashi Tharoor? His English accent. His speaking enunciation is very good. Yeah, English accent. I told No, him. not accent. The way he speaks. Very clear. Very clear. And the choice of words he Yeah. had. You always have to look up to dictionary.
to know what he said. Heroes is actually अभी हीरो का कॉन्सेप्ट हमारा बिगड़ गया. हमारे लिए हीरोज जो टीवी पर आते वो हो जाते. Most of us name the heroes who are on the TV, who are on the screen. लेकिन स्क्रीन पे आने वाले जितने भी हीरोज हैं, they are not doing their life or living their life for something external. They are living their life for own. तो जो भी है वो अपने लिए वो लाइफ जी रहे हैं. जो अपने लिए लाइफ जी रहे हैं, they cannot be ideal for others technically. If you want to be a sportsman, then for that particular purpose, a sportsman can be ideal for you. Or if you want to be a politician, your role model can be a politician. If you want to be a cartoon character, then your role model can be a cartoon character. Getting my point? What I want to say? You want to be? वो चटनी ऊपर से रहना किसको अच्छा लगेगा? तो हीरोज और हीरोइंस के बारे में हमारा धारणा बहुत गलत होगी. एक बार जीजाबाई का नाम सुना आपने? नहीं बोली. भुवनेश्वरी देवी का नाम आपने नहीं सुना. भुवनेश्वरी देवी वाज मदर ऑफ अ चाइल्ड whose name was नरेंद्र. तो ये नरेंद्र, he was the bright student. और भुवनेश्वरी देवी, he was a very bright mother, one of the brightest mother in Indian history. You are not aware of them as of now, but you will be later. तो भुवनेश्वरी देवी ने नरेंद्र को पूछा, जैसा आपको भी पूछते हैं आपके पेरेंट्स से, आपके कई लोग मिलने वाले, नरेंद्र तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो नरेंद्र को पता नहीं था, जैसा आपको भी कई लोगों को नहीं पता है. पता है? किसको किसको पता है मैं बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ? पता है? ओके, 1 2 3 4 ओके, आधों को पता, आधों को नहीं पता. तो नरेंद्र को भी नहीं पता था. तो ही फॉल्ट इन योर कैटेगरी, दे वर नॉट रेज देयर हैंड्स. तो नरेंद्र का मैं सोच के बतलाऊंगा. ठीक है, सोच के बताना. 2-3 दिन बाद नरेंद्र आया, एंड इट वाज द 18th century इंसिडेंट. तो 18th century में नरेंद्र लौट के घर आया. माँ मैं आज सोच के आया हूँ कि मुझे क्या बनना है. तुमने पूछा था ना 3 दिन पहले कि तुम्हें क्या बनना है. आई हैव डिसाइडेड मुझे क्या बनना है. अच्छा नरेंद्र, तुमने सोच लिया तुम्हें क्या बनना है? जी माँ, सोच लिया. तो क्या बनना है तुम्हें? माँ मुझे गाड़ीवान बनना है. गाड़ीवान? वो क्यों बनना है? गाड़ीवान इज द कोच ड्राइवर ऑफ द हॉर्स कार्ट. जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं उसका जो ड्राइवर है, जो घोड़ों को हाँकता है. उस जमाने में कार नहीं थी, तो हॉर्स राइडिंग्स होती थी ना. तो 2 घोड़े आगे लगे हैं या 1 घोड़ा आगे लगा है और पीछे बड़ी सी बग्गी है और उस पर कोचवान बैठता था. तो इट वॉज अ इंग्लिश एरा एंड कोचवान वॉज वेरी फैंसी. तो उसने पूछा क्यों गाड़ीवान क्यों बनना है? माँ उसके बूट्स बहुत सुंदर होते हैं, एकदम चमकते हैं. उसकी ड्रेस बड़ी स्टाइलिश होती है, कॉलर तक एकदम लॉक. उसकी हैट वो भी बड़ी स्पेशल होती है. और उसके हाथों में जो चाबुक होती है ना, वो घोड़ों को ऐसा ऐसा बस हिलाता है, घोड़े मुड़ जाते हैं. वो चाबुक मारता भी नहीं है, खाली चाबुक को इधर हिलाता है और घोड़े मुड़ जाते हैं. क्या पावर होती है. और जब वो गाड़ी रोककर जमीन पर उतरता है तो उसके बूट से ठक ऐसी जो आवाज आती है ना माँ, वो बड़ी अच्छी होती है. मुझे तो गाड़ीवान बनना है. भुवनेश्वरी ने कहा अच्छा तुमको गाड़ीवान बनना है, चलो गाड़ीवान बनना है तो कैसा गाड़ीवान बनना मैं सिखाती हूँ. और नरेंद्र का हाथ पकड़कर भुवनेश्वरी देवी उसको अगले कमरे में लेके गई. और माँ भुवनेश्वरी ने कहा बेटा नरेंद्र तुमको गाड़ीवान बनना है ना, तो ऐसा बनना. और उस फ्रेम की ओर इशारा किया. व्हाट वाज विद दिस फ्रेम? एनीबॉडी कैन गेस? कृष्ण जी, यस. महाभारत हाँ. अर्जुन को देख. Yes, it was Arjuna Krishna painting on the Rath, and Krishna was the driver, and Arjun was the chariot. और अर्जुन पीछे खड़ा है और कृष्ण अर्जुन के 4 सफेद घोड़ों की लगाम पकड़कर खड़े हैं. तुमको गाड़ीवान बनना होगा तो ऐसा बनना. ऐसा क्यों बनना है माँ? क्योंकि जब तुम ऐसे गाड़ीवान बनोगे तो
तुम खाली अपना रास्ता नहीं देखोगे, तुम दुनिया को रास्ता दिखा सकोगे, क्योंकि कृष्ण ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। और माँ ने जब ये बात कही, वो बालक नरेंद्र ने वो बात पकड़ ली, मुझे गाड़ीवान बनना है और कैसा बनना है, कृष्ण के जैसा बनना है। एंड दैट डे he decided that I will be a torch bearer like a Krishna. And what do you know? What he became? Not President. No, he was not Narendra. It was 18th century. Today is not 18th century. Any other guess? King. Not king. Servant. He became Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, childhood name was Narendranath Dutt. His father's name was Vishwanath Dutt and his mother's name was Purvaneshwari. कोई एक छोटा बालक, साधारण थे नरेंद्र, हम लोगों की तरह ही, कोई ऐसी विशेषता नहीं थी कि वो इतने बड़े इस पूरी शताब्दी में 150 साल में उनके जैसा कोई तेजस्वी महापुरुष नहीं हुआ। लेकिन बचपन में कोई उनमें खास बात नहीं थी। He was bright, he was brilliant, but he was not like कि वो इतने बड़े बन जाएंगे कि 150 साल बाद दुनिया उनकी शारद जयंती, शारद यानी 150वीं जयंती मनाएंगे। हमने भी 150वीं जयंती सेलिब्रेट की स्वामी विवेकानंद ने। एक छोटी सी घटना एक बालक को कितना आगे ले सकती है। Why? He set his hero. Who will be my hero? जिसने अपना हीरो सेट कर लिया वो लाइफ में आगे बढ़ गया। ऐसे एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ, उसका नाम बाद में बताता हूँ। एंड ही वाज अ बॉय एंड ही वाज 8 years old. It is also 18th century incident around 1874. And this small young boy was returning from his school. And when he was returning from the school, he saw a bioscope. You know bioscope? Bioscope. Have you heard of it? A wooden box. That in that time there was not television or theaters, but there were movies, and those were silent movies. आपने कभी भारत में गए तो ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए तो वहाँ पर एक प्लास्टिक का कैमरा खरीदा है जिसमें ऐसा बटन घुमाओ तो अंदर पिक्चर्स घूमती है। Everyone of must you have seen ना? छोटा सा कैमरा प्लास्टिक का जिसमें ऐसा घुमाओ तो पिक्चर्स आती है, नहीं देखा? सीन ना? हाँ? ग्लोबल विलेज में देखा, ओके। मैं भी देखा। तो it was the time of bioscope. It was a wooden box. There were reel inside a picture, और वो पार से ऐसा हैंडल घुमाने से वो पिक्चर्स बदलती थी। उसी पे टेक्स्ट लिखा होता था। There was no voice. खाली उस पिक्चर्स को देखकर उस टेक्स्ट को पढ़कर you know what is going on, you know the story. And this boy seen this movie which name was Satya Harishchandra. You know Harishchandra? He was the first filmmaker. No, I'm not talking about that Harishchandra. We are talking about King Harishchandra. Have you heard of it? Satya Harishchandra, no? हरिश्चंद्र वो राजा थे जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, सत्यमेव जयते। और उनकी परीक्षा लेने के लिए अच्छा बायोस्कोप, ओके, वी हैव इट ऑन गूगल। इट वाज द बायोस्कोप। तो ये बायोस्कोप में ऐसा लगा होता था, बच्चे ऐसा झांकते थे ग्लास में और लेंस के अंदर से उसको पूरी मूवीज दिखती थी। तो उस बालक ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा और इस नाटक में उसने देखा कि हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए देवता आए और देवताओं ने ये आदमी झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये टेस्ट करने के लिए दे टुक द हार्डेस्ट एग्जाम। हरिश्चंद्र का राज्य चला गया, उनकी पत्नी और उनके बेटे को लेकर, उनका छोटा बेटा राहुल, उस राहुल को लेकर और उस पत्नी को लेकर वो घूम रहे हैं। पत्नी को भी बेचना पड़ा, बेटे को भी बेचना पड़ा और इतनी कड़ी परीक्षा होती गई उनके जीवन में, इतनी टफ सिचुएशन आती गई कि लास्ट में उनको शमशान घाट पर खड़े होकर चौकीदारी करनी पड़ी।
ही वॉज द टैक्स कलेक्टर ऑफ द शमशान घाट की शमशान घाट में जो आएगा उससे इतना टैक्स तुमको कलेक्ट करना है, शव जलाने का इतना टैक्स लेना है. सो ही वॉज ऑन द ड्यूटी ऑफ द टैक्स कलेक्टर इन द शमशान घाट. इतना खड़े होकर भी उन्होंने जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला. नाउ द देवतास गो मोर हार्डर. शिव जी वॉज टेकिंग हिज एग्जाम और शिव जी परीक्षा लेते रहते. उनके छोटे जो पुत्र था 7-8 वर्ष का, उसको आके एक सांप ने काट लिया. He immediately died. Now his wife is carrying the dead body of his child to this शमशान घाट. और शमशान घाट पर आकर कहती है कि हमारा बेटा मर गया. हरिश्चंद्र कहता है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है कि मैं उसको जलाने की फीस दे सकूं. क्या तुम्हारे पास हैं? उसने कहा मेरे पास भी नहीं. तो फिर हम उसको नहीं जला सकते. कैसी बात करते हो तुम इस शमशान घाट के टैक्स कलेक्टर हो, किसी को क्या पता लगेगा, तुम उसको अंदर जाने दो, हम उसको जलाएं. तो हमारा बेटा मर गया, हम उसको जलाएंगे भी नहीं. कृष्ण ने कहा लेकिन मुझे जो काम दिया गया है उससे चोरी नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता. सॉरी, रो रहे दोनों. लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने बेटे को जलाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा. आखिर में उसकी पत्नी ने कहा मैं करूं क्या? उसने कहा ऐसा कर, तुम जो साड़ी पहनी है इसकी आधी साड़ी फाड़ कर दे तो उसका मूल्य लगभग जो टैक्स मुझे चाहिए उसके बराबर हो जाएगा. उतनी साड़ी बेचकर, उतना कपड़ा बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं टैक्स ले लूंगा. और तब हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम यशोधरा, मैं भूल गया याद दिला. तब हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और आधी साड़ी फाड़ कर जब टैक्स देकर और वो अपने शव को जलाने चले तब वहां शिव जी प्रकट हुए. और शिव जी ने प्रकट होकर कहा हरिश्चंद्र तुम्हारे ऐसे सत्य की परीक्षा देने वाला तो तारामती ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दी. तब शिव जी वहां प्रकट होकर कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे सत्य का पालन करने वाला इस विश्वधरा पर कोई नहीं. और ये पूरी कहानी इट इज अ लॉन्ग स्टोरी. आई हैव टोल्ड यू इन द शॉर्ट बट यू मस्ट हैव स्टडी. तुम सबको सत्य हरिश्चंद्र की कथा पढ़नी चाहिए. इट इज ऑन द गूगल. देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज ऑन आल्सो सत्य हरिश्चंद्र. अब तो बोलने वाली मूवीज है. उस समय तो उस बालक ने जो मूवी देखी, उस बालक का नाम था मोहनदास. और ये बालक मोहनदास 8 साल का है और इसने वो मूवी देखी बायोस्कोप में एंड ही वाज सो इंस्पायर्ड. उसने कहा कि ये आदमी इतनी मुश्किल में आ गया, एक राजा होकर इसको भीख मांगनी पड़ती है, अपनी पत्नी को बेचना पड़ता है, बेटे को बेचना पड़ता है, खुद शमशान घाट का चंडाल, एक राजा है वो. हाँ, और शमशान घाट में चंडाल की नौकरी कर रहा है. चंडाल की नौकरी मतलब चंडाल से भी नीचे, टैक्स कलेक्टर. और अपने बेटे को भी शव जलाने, मर गया बेटा, उसके शव जलाने का भी पैसा नहीं है तो अपने बेटे को नहीं जला सकते, ऐसा बतलाता है. इतनी कठिन परिस्थिति में से झूठी बोला, आई विल नॉट स्पीक अ सिंगल लाई फ्रॉम इन माई लाइफ फ्रॉम टुडे ऑन. और उस 8 साल के बालक मोहनदास ने तय किया मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा. एंड यू नो व्हाट हैपेंड. एक ही संकल्प ने उस साधारण से बालक को, हम जैसे ही था वो, हमसे भी खराब, स्कूल में कोई बहुत बड़े नंबर आए हो ऐसे हिस्ट्री नहीं, कोई बहुत ब्रिलियंस था ऐसी हिस्ट्री नहीं, लेकिन जीवन में एक नियम का संकल्प लेने से जीवन कैसा बनता है कि वो व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपिता बना. तो महात्मा गांधी इट वाज अ स्टोरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी. How that Mohandas became Mahatma Gandhi? Because he took a sankalp, he made a hero. That Harishchandra will be my hero and I will not speak a lie. So what is more important? That we have to set our heroes. वो हीरो मैंने आपको विवेकानंद बताया, गांधी बताया, हरिश्चंद्र बताया नहीं होनी चाहिए. It should be from you own. आपके अंदर से वो आनी चाहिए. And it should be a historical figure, not a living figure. Living heroes में बाद में गड़बड़ हो सकती है. अभी आपके लिए वो आइडियल है, कुछ साल बाद नहीं भी रहे. इट इज पॉसिबल. सो द लाइफ विच हैज बीन प्रूवन बाय द टाइम, जो प्रूव हो गया पूरे लाइफ में, और वो जब आप अपने लाइफ में सेट करते हो, देन यू गेट इंस्पिरेशन, द परमानेंट इंस्पिरेशन टू बिकम समथिंग. एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज माय हीरो. मेरे जीवन के कुछ हीरोज होने चाहिए. एक ही होगा ऐसी भी जरूरत नहीं.
देयर कैन बी सेवरल। मेरे जीवन के बहुत सारे हीरोज हैं, एक ही नहीं है, वो सब मैंने, लेकिन उन सब के इंस्पिरेशन ने मेरे जीवन को जो बनाया वो मैं, मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद है, मेरे आदर्श गांधी जी है, मेरे आदर्श तुलसीदास है, मेरे आदर्श हरिश्चंद्र है। ये सारे आदर्श मिलाकर मैं बनता हूं। आदर्श बनने का मतलब मुझे हरिश्चंद्र बनना नहीं है, मुझे गांधी बनना नहीं है, मुझे विवेकानंद बनना नहीं है, मुझे आशु से अच्छा आशु ही बनना है। आई डोंट नीड टू बिकम एनीवन एल्स। नोबडी नीड्स टू बी सचिन और धोनी और स्पाइडरमैन certainly, but you can be inspired from them and you can take the inspiration and you can build your life. It is important. Now the other two more aspects I want to talk to today. One is how's your friends and what books or movies or series you watch. That is very important. What kind of friends you have. हमारे जीवन में हमको अच्छी बात सिखाने वाले और बुरी बात सिखाने वाले, अच्छी बात सिखाने वाले तो जीवन में बहुत लोग मिलेंगे। हमारे माता पिता भी होंगे, हमारे बड़े भी होंगे, हमारे को टीचर्स भी होंगे, लेकिन बुरी बात सिखाने वाला हमारे जीवन में जो हमको मिलेगा वो हमारा कोई फ्रेंड होगा। ध्यान में, बुरी बात कभी भी कोई और नहीं सिखाएगा। If you have chosen a wrong friend, then he will teach you the wrong habits. सिगरेट पीना सिखा सकता है तो कौन सिखा सकता है बोलो? तो सिखा सकता है। शराब पी के तो देखो बड़ी अच्छी होती है, कौन सिखा सकता है बोलो? अरे गाली बक्के तो देखो बड़ा मजा आता है, you'll feel like something, कौन सिखा सकता है? क्या मैं ना, जीवन में हर बुरी बात सिखाने वाला वो कोई एक मित्र ही होता है। और इसलिए हमारे इनको मित्र नहीं कहा, हमारे शास्त्रों में इनका नाम है हित शत्रु। ये हमारे हित के शत्रु होते, दिखने में मित्र जैसे होते, दे कम एज अ फ्रेंड्स बट दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर योर हित शत्रु। वो तुम्हारे भले का नाश करते हैं। और इसलिए when we choose our friends are the most important things what we do in our life. Why? We cannot choose our parents, can we? We cannot choose our family, can we? Even we cannot choose our school, can we? So we cannot choose our teachers also. At a certain level, after graduation you can, but before graduation you cannot choose even your teachers. But your friends, it is always on your choice. What friend you make, it is only your choice. It is no luck, it has no pressure, it has no other scenarios. ये केवल और केवल हमारी अपनी चॉइस है। एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई मेक, आई बिकेम वन। एक बार किसी को अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाना था, जाते हैं ना, अब तो कम जाते, पहले जाते थे। तो दूसरे गांव में गए, तो पहले खबर भी नहीं होती थी कि मोबाइल से बोल दिया कि हम देखने आ रहे हैं, पहुंच गए सीधा। तो पता लगा कि वो लड़का तो व्यापार के काम से दूसरे गांव गया, 3 दिन पहले गया, अभी तो 1 हफ्ते बाद आएगा, लड़का तो मिला नहीं। तो लड़की के पिताजी ने सोचा क्या करें, तो लड़की के पिताजी के साथ उसके गांव के सरपंच भी गए थे, लोग लेके जाते थे। तो सरपंच जी की कोई चिंता की बात नहीं, लड़का नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, मैं तुमको अभी बतला दूंगा लड़का है कैसा है। बोले लड़का नहीं, फिर कैसे बतला दोगे कैसा है? बोले पता करते उसके दोस्त कौन कौन है गाँव में, और गाँव में जैसे उसके दोस्त होंगे समझ जाना वैसा वो है। तो पूछा लड़के के पिताजी से कि लड़का नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसके दोस्तों से मिलने जाते हैं जिसके साथ वो दिन भर में सबसे ज्यादा समय रहता है, ऐसे जो लड़के गांव में हो उनसे हमको मिलवा दीजिए। अब वो लड़के अगर पान खाते होंगे तो वो लड़का भी पान खाता होगा, वो लड़के जैसी भाषा बोलते होंगे वो लड़का भी वैसी भाषा बोलता होगा ना। हमारे फ्रेंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी होती है। और इसलिए we have to choose our friends very wisely. We have to be very choosy about it. Don't call them everyone friend of you. They are not friends, they are acquaintances. वो मिल रहे हैं आपको, मिलने जुलने वाले। आपका जो फ्रेंड हो वो आपकी चॉइस का होना चाहिए, and that should be well examined. आपने उसको ठीक से समझकर चुना है, वो आपका हित शत्रु नहीं होगा। That should be certain. अगर वो हित शत्रु हो सकता है, you don't need to have a friend like that. जो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है,
कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, he should not be in your friend list, certainly. If he is, then you are going to spoil it. आपको लगता है कि हम नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन आप वो लड़ाई कर रहे हैं जिसके जीतने में कुछ नहीं मिलेगा, और हार गए तो सब कुछ चला जाएगा. तो वो लड़ाई लड़ने वाला बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो जीतने पर तो कुछ मिलेगा नहीं. तुम उसके साथ रहकर कुछ बिगड़ा नहीं तुम्हारा तो कुछ मिलेगा, लेकिन उसके साथ रहकर बिगड़ गए तो लाइफ चली जाएगी. सो वी हैव टू चूज अवर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली कि हम वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे जिसको जीतने में कुछ भी मिलेगा नहीं और हारने पर सब कुछ चला जाएगा. इज इट वाइज टू फाइट दैट फाइट? सर्टेनली नो. तो हमको अपने फ्रेंड्स को जरूर चूज करना चाहिए. और थर्ड, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो ये सीक्रेट फ्रेंड्स हैं, दोज आर द बुक्स एंड द मूवीज एंड द सीरीज वी वॉच. बिकॉज जो भोजन आप मुख में डालते हैं, that makes your body. What kind of food you eat, that type of health you have. You have very बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हो, बहुत फैटी फूड खाते हो, बहुत सारा अनहेल्दी फूड खाते हो, your body become unhealthy, right? You eat the healthy food, your body become healthy. Similarly, what food you give to your mind, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को आप कैसा फूड देते हो? Your thoughts are nothing. It is made of the food you give to them. आपके विचार क्या है? जो आपने कहीं पढ़े हैं, जो कहीं सुने हैं, जो कहीं देखे हैं, जो कहीं एक्सपीरियंस किए. That are your thoughts. And Swami Vivekananda says, man is made of his thoughts. आप जैसा विचार करते हैं वैसा बनते जाते हैं. भगवद गीता में भगवान ने कहा, यो छद्रहसा एव सा, जो जैसी श्रद्धा करता है, जैसे विचार करता है, वो वैसा ही बनता जाता है. What are you? You are nothing. You can become whatever you want, whatever you wish, whatever desire, whatever you have faith in, you will become like that. That is Bhagavad Gita says. अब जिस बात में आप मोबाइल में गेम खेलना शुरू करो, आप क्या कहलाओगे? गेमर कहलाओगे कि नहीं? यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर, इट इज इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर है ना. स्पोर्ट्स करने लग जाओ तो ही इज अ स्पोर्ट्समैन, है ना. खूब बातें मारते हो, बातूनी, बड़ा बतूनी व्यक्ति है, बातें ही मारता रहता है. कभी कुछ बोलते नहीं तो वो एकदम भैया चुपचाप है, जो बोलते ही. जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही हमारी पर्सनालिटी होती है. राइट और रॉन्ग? हम जो करते हैं वही पर्सनालिटी बन जाती है हमारी. ओवर द 2 years, ओनली इन 1 year ओनली, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो. तुम कैसा पैदा हुए ये किसी के हाथ में नहीं. मैं कहाँ पैदा होऊंगा, किसके घर पे पैदा होऊंगा, किस सिचुएशन में पैदा होऊंगा, मेरी लर्निंग कैसे होगी, नोबडी नोज, नोबडी कैन डिसाइड. बट मैं कैसा मरूंगा, इट इज ओनली इन माई हैंड. मैं क्या बन के मरूंगा, इट इज ओनली इन माई हैंड. मैं क्या प्राप्त करके मरूंगा दुनिया में, इट इज ओनली इन माई हैंड. सो आई हैव टू बिल्ड माई फ्यूचर, आई हैव टू बिल्ड माई सेल्फ, आई हैव टू बिल्ड माई कैरेक्टरिस्टिक. मैं कैसा दिखूं, लोग मेरे बारे में कैसा विचार करें, मैं किसी को मिलूं तो लोग मेरे बारे में कैसा सोचे, इट इज ओनली ऑन मी, नोबडी एल्स. एंड इट डिपेंड्स on the what food I am giving to my mind. मैं यहाँ पर क्या भर रहा हूँ, उसी से मेरी पर्सनालिटी बनने वाली है. मैं कैसी स्टोरीज पढ़ता हूँ, मैं कैसे लोगों को पढ़ता हूँ, मैं कैसी मूवीज देखता हूँ. Somebody is watching so much violence in the movies. He will have the violence in his character. Definitely है, वो आएगा, अपने आप आएगा. तुम बहुत सारा हॉरर मूवीज देखने लग जाओ, You will have the fear in your life. अपने आप को फियर आएगा. तो इसलिए मैं क्या देखूं, मैं किस प्रकार का. अब कोई केवल फिक्शन ही पढ़ता है और फिक्शन ही देखता है, उसका लाइफ भी मुंगेरी लाल के सपने बनता है. मुंगेरी लाल के सपने इनको नहीं पता है, ये आपको पता है. तो ये बिकम्स अ डे ड्रीमर, अ फेरी टेल लिविंग लाइफ. ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वो होती नहीं है. देन ही गोज इनटू डिप्रेशन, देन ही गोज टू साइकियाट्रिस्ट हेल्प. यार भैया कुछ बतलाओ, मेरी बातें सुनो. ये जाना पड़ रहा है ना, इसका मतलब यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ वेल, यू आर नॉट प्लानिंग योर लाइफ वेल, यू आर नॉट बिल्डिंग योर लाइफ वेल. तो हम लोग अपनी लाइफ को ठीक से बिल्ड करें, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, अपने आइडियल्स, अपने हीरोज ठीक से चूज करें, हमारे फ्रेंड्स वाइजली चूज करें, और हमारी फूड ऑफ थॉट्स, हमारे जो हम क्या बुक्स पढ़ते हैं, क्या मूवीज देखते हैं, क्या सीरीज देखते हैं, किन विचारों से हमारा अधिक प्रभाव होता है. अब कोई कम्युनिस्ट विचार पढ़ने लग जाएगा, he will become like that. आप संघ की शाखा में जाने लग जाओगे, he will become like that. आप गीता परिवार के केंद्र पे आने लग जाओगे, he will become, क्योंकि आपका फूड ऑफ थॉट
उस प्रकार का अपने आप होने लग जाएगा. You will become like one. So what I need to become, I have to join that thing. I have to be with that thing. हम जितना जितना उसके साथ होते जाएंगे उस प्रकार से हम अपने आप को बनाते जाते हैं. हमको अपने आप को गढ़ना है. अब हम सबको 60 साल से लगभग 80 साल की जिंदगी, नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है, कोई जल्दी भी आ सकता है, देर भी आ सकता है. एवरेज लेंगे तो 60 years to 80 years ऑफ लाइफ स्पैन भी है. सो इट इज नॉट वेरी बिग, बहुत लंबा नहीं है. हम करोड़ों जन्मों की यात्रा में ये 60-70 साल का एक पड़ाव है. इस पड़ाव को मैं कैसे जीऊं, इसको कैसे बिल्ड करूं, आई हैव टू डू इट वेरी वाइजली. एंड दिस इज द राइट एज. व्हेन यू आर एट टीन एज फ्रॉम 12 to 19, इट्स अ वेरी हाई टाइम व्हेन यू कैन डिसाइड योर वे. मैंने जितने लोगों के आपके उदाहरण दिए, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, चाहे गांधी जी का हो, चाहे अलग अलग किसी महापुरुष की बायोग्राफी आप पढ़ेंगे, दे हैव बिल्ट देयर लाइफ व्हेन दे वर अ टीनेज. I was 17, for myself I tell you, मैं अपने बारे में बताता हूँ. मैं 17 का था तब मैंने तय कर लिया था कि मेरा जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं होगा. Then I decided. I'm from the business family, so I have to do business. That is all fine. But when I was 17, I decided my life will not be for money, because that is not the thing I want. वो ठीक है, जीवन के लिए जितना चाहिए वो लेंगे, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. That I decided when I was 17 कि ये जो teenage है, that is the best to decide where I have to take my life. And when you think ठीक है यार चलता है ना, हो जाएगा ना, जो होना है हो जाएगा, तो होता ही रहता है. आप 40 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, 60 के हो जाओगे, 70 के हो जाओगे, और आपको पता नहीं लगेगा लाइफ चाहिए था क्या. आप चल रहे हो, बस चल रहे हो, चले हुए थी. ऐसा लाइफ जीना है कि मेरा लाइफ मुझे कैसा बनाना है, ऐसा लाइफ जीना है. That we can decide, that we can choose. And when you choose, then your path becomes your torch. और आप उस टॉर्च पे, उस पाथे को लेकर चलेंगे तो उस तरह की लाइफ प्राप्त करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. Anyone can ask questions if you have any question about this session or the life or anything else. We can ask. Jyoti, Kavita, we can start with some questions. जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बीच में हम लोग के पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं ना, पढ़ाई से एकदम माइंड डिफरेंट उस पर चला जाता है. तो एक वो कैसे मतलब सेट करे कि Distraction is not the problem. If you have several kind of things in your life, then it is nice to have that. मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं पढ़ाई करने के सिवा, ऐसा लाइफ अच्छा होगा क्या? It will certainly not. तो मेरी लाइफ में कुछ अलग अलग एस्पेक्ट हो, अच्छा है. खाली रोटी परोस दी रोज और का खाओ, ना सब्जी है, ना दही है, ना दाल है, खा पे बड़ा बोरिंग लाइफ हो जाएगा, राइट. खाली स्टडीज के साथ लाइफ बहुत बोरिंग है. स्टडीज आर वन पार्ट ऑफ लाइफ. It doesn't make your life complete. It is a essential part, but a small part of your life. So केवल स्टडीज लाइफ होना ये जरूरी नहीं है. But what you ask is very important. When we are on the studies, how we can focus at that time only on the studies. क्योंकि मैंने भी बोला, जब खेलो तो खेल के बारे में सोचो, स्टडीज के बारे में सोचो. जब स्टडीज करो तो स्टडीज के बारे में सोचो, अन्य बारे में सोचो. ये होगा कैसे? ये तब होगा जब अपने मन को हमको काबू करने आएगा. अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, नौकर को मालिक की बात माननी चाहिए कि मालिक को नौकर की बात माननी चाहिए? दोनों को. नौकर के भी राइट्स होते हैं. Leave the rights. What is the idea? नौकर को मालिक के सुनना चाहिए. नौकर को मालिक की सुनना चाहिए. हाँ, ठीक है. किसी का दूसरा है. अब आपने अपने घर पे स्टाफ रखा, वो बोले पानी लेकर मेरे लिए, चलेगा क्या? हाँ. तो नौकर को मालिक की बात माननी चाहिए. एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड? श्योर. अब मन हमारा है कि हम मन के? विचार करो. मन हमारा है. श्योर. हम मन के हैं कि मन हमारा है? सोच लो. मन हमारा है. मीन्स आई एम द ओनर and he is the staff. Is it clear? Anybody has doubts on that or any other opinion? मन हमारा है, मन हमारा नौकर है. I am the owner. Definitely. Everybody has nobody has second opinion. अब अगर मन हमारा नौकर है और हम मन के स्वामी हैं, तो मुझे मन की बात माननी चाहिए कि मन को मेरी बात माननी चाहिए? आइडियली
क्या? बोलो बोलो। आइडियली वही है, पर कभी कभी नहीं मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट आंसर है। आइडियली आइडियली मन को हमारी बात माननी चाहिए, लेकिन हो ऐसा रहा है कि 100% बात, नॉट 99, 100% बात हम मन की बात मान रहे हैं। इट हैपेंस और नॉट? मन कर रहा है खाएंगे, मन कर रहा है नहीं खाएंगे, मन कर रहा है सोएंगे, मन नहीं कर रहा नहीं सोएंगे, मन कर रहा है जाएंगे, मन नहीं कर रहा। तो बड़ा उल्टा काम हो रहा है। हैं हम स्वामी, हैं हम मालिक, और नौकर हमको नचा रहा है, एक पानी लेके आओ, और हम लेके घूम रहे पानी। ये सब बात उल्टी होगी ना। हमने सीखा ही नहीं कि ये मन हमारा है और हम मन के ऊपर है। हमने अपने मन को ही अपना स्वरूप मान लिया, और ये मन को अपना स्वरूप मानना ही हमारी गलती हो गई, और उस कारण ही हम सारी प्रॉब्लम में पड़ गए। जिस दिन हम सीखेंगे, एंड दैट इज वाई भगवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता टीचेस दैट मन तुम्हारा स्वामी नहीं है, तुम मन के स्वामी हो, एंड ही हैज टू ओबे यू, यू डोंट हैव टू ओबे हिम। यू कैन प्लीज, जैसे नौकर को कभी कभी खुश करते ना, चलो आज इसको भी खुश करते हैं, आज इसको भी अपने साथ खाना खिलाएंगे, आज इसको भी कुछ अच्छा खुश करेंगे। मन को कभी कभी खुश करना चाहिए, लाइक वी डू टू अवर स्टाफ, है ना। लेकिन उसी को खुश करते हैं और अपने को दुखी करते हैं। He is not the wise person, is he? And that's what we are doing mistake. That's where we are making the mistakes. हम हैं तो मालिक, but we are acting like a staff. We are acting like a subordinate. He is under our subordination. We are not. लेकिन उल्टा मान्यता होने से बात बिगड़ गई। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, मेरा मन कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा। जब ऐसा मन बोले तो we need to learn. चुप बैठो, I will tell you मुझे क्या करना है। And there is a बुद्धि जो मन से ऊपर है। We have this स्थूल बॉडी, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, and we have this सूक्ष्म बॉडी जो इसके अंदर है, जो दिखता नहीं है। It is called अंतःकरण चतुष्टय। और ये अंतःकरण चतुष्टय के 4 भाग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार नॉट ईगो, अहंकार मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। सो मन, when you think of something, संकल्प विकल्प, इसको बोलते हैं मन। बुद्धि इज व्हेन यू मेक द डिसीजंस, ये करना ठीक है, ये करना ठीक है। चित्त व्हेन यू धारणा करते हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन यू होल्ड ऑफ समथिंग, आई एम दिस गाय, आई एम, अफर्मेशन कैन से, राइट। अफर्मेशन का थोड़ा और वर्ड चाहिए मुझे, धारणा कुछ ढूंढो उस तरीके से, नॉट एज्यूम। धारणा इज समथिंग, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। कॉन्शियसनेस यू कैन से, बट नॉट एग्जैक्टली, नॉट प्रेजेंस, नो फुल। तो धारणा समझ जाओ, तो इसको बोलते हैं चित्त। चित्त का काम है धारणा करना। मैं जो धारणा कर लेता हूँ, मुझे ये बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे ये काम करना है, जो धारणा हमने संकल्प कर लिया, कन्विक्शन, दैट इज अवर चित्त। चित्त क्या काम करता है? धारणा करने का। हम जो भी, मैं ऐसी लड़की हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं बहुत शाय हूं, मैं शाय नहीं हूं, व्हाटएवर हमने अपने बारे में जो भी मान्यताएं की, व्हाटएवर वी हैव डिसाइडेड फॉर मी कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं नहीं, बट आई हैव, मैंने अपने बारे में ऐसी धारणा कर ली, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। अरे इसमें क्या है, मैं कर ही लूंगा। ये दोनों बातें हमारे अंदर ही होती है ना। एंड दिस सेल्फ कन्विक्शन, इट इज चित्त। एंड फोर्थ इज योर सेल्फ। जब आप रात को सो जाते हैं तो आपका शरीर सो गया, लेकिन सोने के बाद जब आप उठते हैं तो आप कहते हैं आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। हु वाज नोइंग, हु वाज सीइंग क्या बड़ी अच्छी नींद आई? मैं तो सो गया, तब कैसे पता लगा कि मुझे अच्छी नींद आई? और कभी उठते हैं, आज तो बिल्कुल अच्छी नींद है, रात भर मैं करवटें बदलता रहा। तो कौन देख रहा था कि तुम करवट बदल रहे थे? तुम तो सो रहे थे। तो किसको पता लगा कि तुमने करवट बदली? दैट इज सेल्फ, दैट इज अहम। वो हमेशा जागृत है, जो सब समय में आपको देख रहा है। आप सो रहे तो भी देख रहा है, जग रहे तो भी देख रहा है, आप छुप रहे तब भी देख रहा है, आप क्या कर रहे हो वो देख रहा है। इट इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, इट इज नॉट इंटरफेयरिंग। इंटरफेयर करने का काम मन बुद्धि चित्त का है। It is just watching. He is a watcher. He is a self relation. मैं हूँ,
हम 5 साल के थे, हम 15 साल के हुए, हम 25 के होंगे, हम 35 के, 55 के, 75 के, 85 के, बॉडी बदलता जाएगा, है ना। बचपन में नहीं देखी हुई फोटो मेरे को दिखाए, देखो अपनी फोटो, तो हम पहचान भी नहीं पाते कि मेरी फोटो, अगर कभी नहीं देखी वो फोटो, कैन वी रिकग्नाइज इट इज मी। आपको आपके पैदा होने वाली फोटो दिखाई, देख तुम पैदा हुआ था ऐसा था, आप कहेंगे मुझे क्या पता मैं कैसा था, आई डोंट नो इट इज मी और नॉट, राइट और रॉन्ग। If it is me, then I should recognize. But this body is not me. It is changing, every time changing. But feeling of me, it is never changing. आप 3 साल के थे तब भी मैं हूँ, वैसा ही फीलिंग था। 15 के हो तब भी वैसा ही फीलिंग है। 25 के हो जाएंगे तब भी वही फीलिंग है। That feeling is not changing. That feeling is constantly remaining. Who is holding that feeling? That is aham. तो मन, बुद्धि, चित्त और अहम, अंतःकरण, चतुष्टय, it is your सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर पर जिसका नियंत्रण आ गया, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर चित्त है, और चित्त से ऊपर अहम है। मन सबसे नीचे है इसमें, लेकिन हमारी गड़बड़ क्या हो गई, हम बुद्धि को भी मन के नीचे कर देते हैं। मन, बुद्धि कह रही है कल एग्जाम है, चुपचाप पढ़ाई करो, लेकिन मन क्या बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, एक सीरीज का देख लेंगे एक एपिसोड, तो क्या जाएगा 40 मिनट में, फिर काम कर लेंगे, एक बार थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेंगे। बुद्धि कह रही गलत बात है, फ्रेश करने की जरूरत नहीं है, बहुत फ्रेश हो, पढ़ लो चुपचाप, बाद में कहोगे नींद आ रही है, लेकिन अरे पता नहीं उसमें अगला वो सीरीज देखना है, आज तो एपिसोड देखना ही पड़ेगा, और हम फिसल जाते हैं, हम बुद्धि को नीचे कर लेते, धारणा करते हैं, अब की तो मैं ये करके दिखाऊंगा, अब की तो मैं ये करूंगा ही, लेकिन मन बोलता है ठीक है ना, पिछली बार भी जो तुमने धारणा की थी कौन सा कर पाए थे, इस बार भी मत करो, और हम फिसल जाते हैं। तो जितनी बार हम मन को बुद्धि से, चित्त से ऊपर करेंगे, उतनी बार हम अपनी लाइफ को पीछे लेके जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रेयस। और जितनी बार हम मन को दबाकर बुद्धि को, चित्त को ऊपर करेंगे, हम अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे, इसको बोलते हैं श्रेयस। तो प्रेयस करना जीवन में, ये अपनी लाइफ को नीचे लेके जाता है, श्रेयस करना ये अपनी लाइफ को ऊपर लेके जाता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि अपनी लाइफ को कॉन्सेंट्रेट कैसे करना, तो श्रेयस को जितना जितना चुनते जाओगे, उतना उतना मन पर कमांड आता है, और फिर तुम्हें क्या मिलेगा। इट इज नॉट अ ओवरनाइट एक्सरसाइज, यू हैव टू बिल्ड इट फॉर सम टाइम, इन सम मंथ्स यू विल बी एबल टू डू दैट। जय श्री कृष्ण। Before I ask my question, मेरे को बस एक चीज़ clarify करना था। The first exercise you made us do with the shapes, आपका like what was the relation with like real life? Like I forgot it. मैं इससे बताना क्या चाहता हूँ, हाँ। मैं बताना चाहता था कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग स्किल्स हम ऐड कर लेते हैं। हम ये भी सीख लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं, एकेडमिक्स भी कर लेते हैं, बहुत सारे ऐड कर लेते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट टू डू विद द लाइफ। हमने स्किल्स ऐड किए, इससे लाइफ का क्या होगा। बट व्हेन यू ऐड द स्किल्स टू बिल्ड योर लाइफ, जैसे मुझे एक शेप बनाना है, इस शेप में कितने ट्राइंगल्स चाहिए, कितने सर्कल्स चाहिए, कितने, कई बार हम उन स्किल्स के पीछे अपने लाइफ को, टाइम को वेस्ट करते हैं, which will not add my character in the life. Can I? So that will be waste of the time and the energy, because we have the limited time and limited energy. 70-80 साल का ही तो लाइफ है ना, तो we have the very limitation of everything. But when we waste it, then you lose opportunity and the time of an important part of your life for nothing. So you have to be careful, and you have to build a shape of your life, and you have to add the skills, what circle I need in my life, what triangle I need in my life, what square I need in life, how many squares I need, how many circles I need. I love to play, but how much I should play. और मुझे लग रहा है कि मैं स्कूल की टीम में खेल रहा हूँ, and now I am sacrificing my studies for the sports. Sports is a good thing, but can I make career in this? If I am making career in this, of course I can leave my studies to the second priority. But if it is certain that I cannot play as a sportsman, as a career, then I should not sacrifice my academics. Then I will hurt my life. Then I will de-shape my life. That is the purpose of this. I only mentioned this because after we made the shapes, आपने बोला था कि we didn't even think of like putting them together, sort of thing, as you were saying so. But I would say so it was because we did not know what the shapes would be in the first place. It was only after we knew कि जो हमारे पास था, we could assemble all of them together and form structure. That's correct. That was the purpose कि आपको नहीं पता तो आप अलग अलग रखते जाते हो,
जब आपको पता लगता है, then you love to combine it and then you make the sense of this. That was exercise record. कि जब तक मैंने आपको नहीं बताया तब तक आपने उसको अलग अलग रखा, जब तक आपने नहीं सोचा अपनी लाइफ के बारे में. You add the skills of different kind of things. You do so many kind of things in the life, and you don't know what is the purpose. You are doing all the things purposeless. And what will happen when you will become 25, 30 or 35 or 40? You will find मैंने बहुत कुछ किया लेकिन लाइफ कहाँ है? मैं कर क्या रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, पैसा भी कमा लिया, फैमिली भी हो गई, घर भी बना लिया, लाइफ कहाँ है? क्योंकि आपने उस शेप को बनाया नहीं. You added all differently. Got the point? But when you have one figure, one ideal, आपने बहुत सारे ideas को अपने सामने रखा, अपने heroes को रखा, you know what I have to build my life, how to, then you will place every single scenario wisely. आप सोचोगे नहीं ये ठीक है, अट्रैक्ट तो कर रहा है बट मेरे काम का नहीं है, लीव इट. मुझे इस पे टाइम क्यों लगाना है, मुझे इससे क्या मिलने वाला है, लीव इट. आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को वाइजली डिवोट करना और वाइजली उसको एलोकेट करना सीखेंगे कि हम कहाँ उसको कैसे एलोकेट करें. Okay, just one last question. ये थोड़ा deep भी हो सकता है, but Shoot, don't worry. It's regarding the friends thing you mentioned. So you listed out a bunch of habits, which I agree are very bad, and then you said the statement कि there's no point fighting this fight when you have nothing to gain but everything to lose. I half agree with this because I feel like कि you are limiting that person to these habits. Like they can be a good person, they can have a good soul, but they have fallen under the influence of these small habits. एकदम सही बात है. गड़बड़ क्या है कि हम जब उसी एज ग्रुप में हैं तो हमारे पास इतनी पावर नहीं कि हम उसकी हैबिट्स चेंज कर सके. Sometimes when we have this soft corner for that fellow, which we feel that he is very good in certain things but bad in certain things. So he is a big mix of good and bad. I am also a mix of good and bad. So what is the difference? ऐसा मन में आता है, आपके मन में वही आ रहा है, सबके आता है. But this soft corner, what makes it? जब आप उस soft corner के साथ उसके साथ रहते हैं and you being long time with that, then there are a big probability that you will fall in the wrong habits with that guy. What will happen then? I would say it depends from person to person because I understand. Yeah. I'm telling there are 10% chances of fall, 90% of not fall. Then what should I choose? That risk is always there. I will agree. Then I'm asking you, what should I choose? Not to fall. Getting my point? Yeah. Even it is 10%, then why I will choose? If I'm a wise person, I don't have shortage of the friends. I can choose other ones. I am choosing that fellow which makes me 10% on the list to fall. Why I choose? This life is very short. 60, 70, 80 साल का है ना, क्यों गिरकर बार-बार संभलना है? गिरकर समझ जाओगे, ठीक है, तुम गिरकर फिर उठ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्यों गिरना है? Again, the point is that I'm not saying leave everyone who has the bad habits. It is not possible even. But you don't take them in your closer circle, at least. But do you? दो तीन तरह के फ्रेंड्स होते हैं ना, एक तुम्हारे क्लोजर सर्कल के होते हैं, एक आउटर सर्कल के होते हैं, एक खाली बस है हेलो मिलना, कोई काम पड़ा बात कर लिया, ऐसे हैं तो ठीक है ना. क्लोजर सर्कल, मैं जिनके साथ इंटीमेट होता हूँ, अपनी बातें शेयर करता हूँ, अपने थॉट शेयर करता हूँ, those should not be with the bad habits. That is very important. Okay, that answers my question. Thank you. Anybody else? Don't worry, you can shoot anything. आप यहाँ से हट सकते हैं, ये डरते हैं. क्या पूछेंगे आपसे? मेरे से नहीं डरते हैं. आप ये मान सकते हो उधर कोई नहीं है, हाँ? वो कुछ नहीं सुन. एक और क्वेश्चन. हाँ बोलो. जैसे अगर लाइफ में है पर दो तीन चीज़ें हैं कि पता नहीं है क्या करना है फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल, तो मोटिवेशन कैसे सेट करें? मुझे क्या करना है पता होना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है. एज फार एज वी एक्चुअली क्या हो गया, हमारी गड़बड़ क्या होगी, हम एजुकेशन का सेंस मनी मेकिंग समझ लेते हैं. वी हैव टू गेट सम सर्टेन डिग्री, then we have to get certain job and we have to earn money. That is not the purpose of the education at all. That is the worst purpose of any education can have. Education means we have a certain maturity and a knowledge base in our mind.
हम मनुष्य कैसे बने हैं? एक बार पहली बार किसी ने सीखा होगा कि किस जानवर का दूध पिया जा सकता है। हम नहीं इनोवेट करते कि गाय का दूध पीना है कि भैंस का दूध पीना है, ठीक है। हमको पता है इस जानवर का पिया जा सकता है, इस जानवर का नहीं पिया सकता। हमको पता है कि एक जननी व्हील बनाया था, फिर एक जननी इंजन बनाई थी और कार है। हम दोबारा वी आर नॉट गोइंग टू रीइन्वेंट द व्हील। तो ये जो हजारों सालों की नॉलेज है, इस नॉलेज बेस को लेकर हम नया नया बिल्ड करते हैं। व्हाटएवर रिसर्च द मैनकाइंड डू नाउ, इट इज बेस्ड ऑन द ओल्ड कंप्रेशन। जो पुरानी हमारी सफलताएं उसके ऊपर हम नहीं रिसर्च करते। हम वो रिसर्च नहीं करते जो पहले की जा चुकी है। क्यों? हम पास्ट लर्निंग से सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम पुरानी लर्निंग से सीखकर आगे बढ़ेंगे तभी लाइफ को आगे आगे और बढ़ाते हैं। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? How to motivate yourself? मोटिवेट। तो मोटिवेशन इज नॉट टू व्हाट आई विल बिकम। मुझे क्या बनना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है मेरे मन में एक सर्टेन आइडिया हो, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। हो सकता है ना हो, डजंट मैटर। आई हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इजंट इट अ सेल्फ मोटिवेशन? आई हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। व्हाटएवर आई विल बिकम, आई विल बी द बेस्ट। मैं अगर किसी ऑफिस में काम करूंगा तो सबसे बढ़िया काम करूंगा। मैं उस समय अगर घर का काम करूंगी तो मैं घर का सबसे बढ़िया काम करूंगी। आई विल बी बेस्ट नेबर, आई विल बी बेस्ट डॉटर, आई विल बी बेस्ट मदर, आई विल बी बेस्ट citizen. That should be the motivation. Not I will be the best employee. But isn't the world working ki education is the only way to get money, like make money? Is the world works on that principle itself? That is not all true. Like colleges up there, colleges. I know that. I know what you are telling. But I tell you the another side of this. There are so many people, or I can say, बिल गेट्स कितना पढ़ा है? He is a dropout of 10th class. सचिन तेंदुलकर कितना पढ़ा है? 10th फेल. धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े थे? Yes. So success and money doesn't rely on the academics only. I am not neglecting academics. मेरी बात को गलत अर्थ नहीं करना, लेकिन केवल एजुकेशन ये सक्सेस का बेस नहीं है। ऐसा होता तो सारे ग्रेजुएट्स बढ़िया नौकरी कमा रहे होते, बढ़िया पैसा कमा रहे होते, बट इट इज नॉट हैपनिंग। ग्रेजुएट होने के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी, एक MBA का डिग्री लेने के बाद भी, कोई डॉक्टर होने के बाद भी, सारे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस एक जैसे चलती है क्या? ना, कुछ तो स्ट्रगल ही करते रहते पूरी लाइफ, और कुछ के पास समय नहीं होता मरीज देखने का। इट इज बिकॉज देयर एटीट्यूड। सो व्हेन यू हैव द राइट एटीट्यूड, व्हाटएवर यू विल बिकम, you will become successful. And when you don't have the right attitude, whatever you will do, you will make a mess out of it. वो सब कुछ गड़बड़ी होने वाला है ना? इसलिए राइट एटीट्यूड करना, लाइफ में सही डिसीजंस लेना, लाइफ में सही डिसीजंस लेने का एटीट्यूड बनाना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं क्या बनूंगी इज नॉट इम्पोर्टेंट। अरे जो बनना है बन जाएंगे यार, उसमें क्या बड़ी बात है ना? यस। Yeah. The two examples, both Ambani and Bill Gates, Bill Gates didn't have an education after 10th grade, but he did come from a family of money, so that did contribute to his success. So not true, because Bill Gates ने जो Microsoft का establishment किया, he didn't put his money or family money on it. If you have studied his biography well, he took it on loan. उसने partnership किया, पार्टनरशिप करके लोन करके इन्वेस्टर्स के थ्रू मनी किया। He didn't build the money from his family money. It's not true. और वो किया भी हो, so it's fine. That doesn't. मेन बात ये है कि education is not only the key for the success. That you can have the thousands examples. I don't want to. बात ऐसी है, एजुकेशन की बुराई नहीं है। बात ये है कि उस एजुकेशन के बाद भी सब लोग पैसा नहीं कमा रहे ना, सब लोग को जॉब नहीं मिल रही ना। That you will agree or not? So the more important is, without education, some people are successful, and with education, many are not successful. Means there is another key to success, and that is your attitude. Got the point? पेरेंट्स से कि पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये अब उनको वही बताया गया, क्या करेंगे वो? इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, इस दुनिया को you are living in Dubai.
सो आई गिव यू एक्सरसाइज, गूगल करना और थोड़ा इसको स्टडी करना. देयर आर 1% ऑफ द होल पॉपुलेशन हु इज कंट्रोलिंग द थॉट ऑफ अस. वो 1% लोग दुनिया को तय करते हैं कि तुम ब्रांड्स के पीछे भागोगे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या नहीं पढ़ोगे, किस बात को वैल्यू दोगे, किस बात को वैल्यू नहीं दोगे, what will become the charm of the life, what will become the value of the life. These are decided by 1% of the people in the world. You know that. वो 1% लोग उनकी गवर्नेंस चलाने के लिए गवर्नमेंट्स को भी मोल्ड करते हैं. गवर्नमेंट को क्या करना वो भी वो सिखाते हैं और उनकी बात सबको माननी पड़ती है. And those corporates are the giant corporates are the guide of the world. And those are not guide for the good life. Those are the guide for the life they want us to have. ये एप्पल का पागलपन होना और उसके लिए किडनी बेच के आ जाना, ये ऐसे ही नहीं होता है. Somebody is doing that. Getting my point? सुना है ना, किडनी बेच के आ गया, एप्पल खरीद दिया. अब एप्पल का तो अगला मॉडल अगले साल आ जाएगा, किडनी का कहाँ से लाएगा आपको? क्या काम से आदमी. चलो इस टाइम बहुत हो गया, मजा बहुत आ रहा है मुझे. मैं तो बात नहीं हूँ, बहुत बात कर सकता. Go for it, guys. Ask anything. Yeah. Forgive me if I can't like frame this correctly. It's on the spot. Okay. आपने कहा था कि like a role model has to be someone who you can. What do you say about the role model? Who inspires you. Yeah, and if that someone is only like perfect in your opinion, जैसे कि Sachin Tendulkar, from my example, he's not really my role model. I have like 6 or 7. If you take him for example, he's done things which. Actually, I'll tell you what. I got a question. Let me answer you. Sachin Tendulkar is not your role model, but you said that. I know that also. आपने जब कहा तब भी मुझे पता था कि आपका रोल मॉडल नहीं है, because you are not in the sports. So if you are not in the sports, what sport you play? Cricket. What team you play? I used to play for the school team, but Now you don't play, ना? I know that. So if you are, because तुम जिस तरह बैठे हो, वो बैठने से पता लगता है you are not a sportsman. It's not a criticism. Yeah. I'm telling you why I'm telling that you are not a sportsman. मैं भी sportsman हूँ, ऐसा बैठा हूँ. Sportsman होता तो ऐसा बैठा होता. है ना? You sit straight. So when you are not a sportsman and you have this celebrity in your eye as a ideal, it is because of fancyism. वो सेलिब्रिटी का जो सेलिब्रिटिज्म है, उसके प्रति जो फैन फॉलोइंग है, लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उसको भगवान कहते हैं. हम उससे इन्फ्लुएंस हुए. हम अपने थॉट से उसको भगवान नहीं मानते. लिखा होता है क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर. सो दैट इन्फ्लुएंस अवर माइंड. दैट व्हाट आई टोल्ड यू. 1% लोग दुनिया के तय करते हैं कि हम क्या सोचें. तो ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में सेट किए थे. दीज आर द मार्केटिंग आइडियाज. आई एम नॉट अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर. आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ यू. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. है ना, हम उसके बिग फैन हो सकते हैं. आई एम ऑल्सो मैं उसका प्रशंसक हूँ. आई एम अ फैन ऑफ तेंदुलकर. ऑफ कोर्स आई एम. जब मैं खेलता था या आई वॉज योर एज, ही वॉज द ओनली भगवान फॉर अस. सचिन, बस सचिन हम वही करते करते बड़े. तो ये ठीक है, लेकिन ही वॉज नेवर अ आइडियल फॉर मी. क्योंकि मुझे सचिन नहीं बनना था. मुझे सचिन से कुछ मिला नहीं अपनी लाइफ. सचिन से कोई इंस्पिरेशन एक्सेप्ट he has the best concentration on the ball when he hit. I have nothing to learn from him. And when I have nothing to learn from him, अब वो जो certain scenarios है, उसका attitude right है, उसका concentration अच्छा है, उसकी लगन अच्छी है, वो तो सभी successful लोगों में. I have nothing specific to learn from him. That's why he cannot be my hero. Got my point? God, हमारा हीरो कौन हो सकता है? जिसकी मेरी और उसकी वेवलेंथ मैच करती है और मुझे वो इंस्पायर करता है कि तुम ये नहीं करोगे, तुम ये करोगे. डॉक्टर कलाम का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है. सपने वो नहीं है जो सोते समय आते हैं, सपने वो है जो तुम्हें सोने नहीं देते. यू हैव हर्ड इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हु इज देयर जो तुम्हें रात दिन जागते समय तुम्हारे थॉट्स में तुमको टिंकल करता है, तुमको हिलाता है.
तुम्हारे थॉट्स को स्टिमुलेट करता है, दैट इज योर आइडियल, दैट शुड बी योर आइडियल, दैट शुड बी योर आइडियल। और वो तब होगा जब तुम ऐसे कुछ बायोग्राफीज पढ़ोगे। ये टीवी पर देखकर किसी का लाइफ नहीं पता लगता है। यू हैव टू स्टडी हिज बायोग्राफी, you should know his loose point, his plus points, his best points. वो तब होगा जब तुम उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हो, you know him deeply from the other side also, his also. तो उसके बारे में कुछ पढ़ना, deeply पढ़ना। तो महापुरुषों के हमारा आइडियल कौन, हमारा हीरो कौन हो सकता है? जिसकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है। जिसकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी वो मेरा हीरो कैसे होगा? जिसका जीवन में पढ़ा ही नहीं, खाली सुना सुनाए के बारे में कोई थोड़ी बोलता है। सुना सुनाए तो अगेन इट इज अ मार्केटिंग थिंग। इसको लोगों ने टांग दिया, वो हो गया, इसको नहीं टांगा, वो नहीं हुआ। उधम सिंह को कोई नहीं जानता, भगत सिंह को सब जानते हैं। उधम सिंह contributed more than Bhagat Singh. I'm not denying Bhagat Singh, don't misinterpret me. लेकिन we don't know, how many of you know Udham Singh? No, you have heard of it, है ना? तो लेकिन भगत सिंह को सबने सुना है। So it is not कि भगत सिंह was something so great और उधम सिंह was not. It is something which came in the books, जो हाईलाइट हो गया किसी वजह से, मार्केटिंग में आ गया, और जो नहीं आया। But reality is not always that. Bhagat Singh was a great person, but Udham Singh contributed more in the freedom fight. तो अब हम उसको नहीं जानते, इसका मतलब उसका contribution कम नहीं हो जाएगा ना? When I think of myself, Udham Singh inspires me more than Bhagat Singh. He was an atheist. He doesn't inspire me that much. तो ये अलग अलग बात. When you study the life, then you know about that. Right? और कुछ करना है कि ओवर करें? अनुजा दीदी, कैन बी ओवर? चलो, बड़ा मजा आया आप सबके साथ बात करके। आप टाइम निकल कर आए मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस लेटर ऑन आल्सो थ्रू द अनुजा दीदी। Whenever you have question, you can send me a voice message through Anuja Didi and I will try to reply. Thank you. Yes. वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू ऑल।